एनी डाउट्स टू एनीवन? किसी को कोई डाउट पिछले लेक्चर्स में? Also, sir, I had one doubt. हाँ जी। Sir, the fluid mechanics concept which we are applying, sir, are these concepts which we are studying, are they applicable for glass also? Because we have studied that glass is a type of a fluid as it flows very slowly. These concepts are essentially valid only for Newtonian fluids. All right, sir. तो यहाँ पे ध्यान रखना, प्लीज रिमेंबर, जो भी एनालिसिस हम कर रहे हैं अभी, and in Okay. the entire course, that is valid for only Newtonian fluids. Okay, sir. Thank you, sir. ठीक. So I'm starting now. So we were essentially deriving the fundamental equation of fluid statics. तो ये fluid statics की fundamental governing equation है. And what we have done is हमने एक fluid जो stationary है, that is static, हमने उस fluid में से एक small element choose कर लिया है, and that is essentially of this geometry, and we are showing different forces on this differential small control volume. तो ये differentially small है, इसका मतलब है कि ये dx है, ये dy है और ये dz है. So these are differentially small lengths. We have assumed about this point, say this point G, that this is the small differential element. Now we will be finding out the fundamental equation of statics as it is applicable to a point. लेकिन हमने देखा था पहले भी कि हम पॉइंट पे एज सच डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते प्रेशर. सो वी नीड टू चूज अ डिफरेंशियली स्मॉल कंट्रोल वॉल्यूम, and in this case we have chosen this cuboid, and we didn't choose a tetrahedron only for simplicity. We could have chosen tetrahedron as well, and we would have arrived at the same fundamental equation. लेकिन सिर्फ उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने इसको टेट्राहेड्रन की बजाय सिंपल क्यूबॉइड चुना. ठीक है. तो फ्लूइड स्टैटिक कंडीशन में इट मींस अंडर द एक्शन ऑफ ऑल फोर्सेस the body is in static equilibrium. What does that mean? Sum of all forces in x, y as well as z direction should be 0. और एक्स वाई जेड डायरेक्शन में दो तरह की फोर्सेस लग सकती हैं. वन वाज कॉल्ड सरफेस फोर्स एंड अदर वाज कॉल्ड बॉडी फोर्स. तो सरफेस फोर्स कौन सी है इस केस के अंदर? व्हाट इज द सरफेस फोर्स इन दिस केस? द प्रेशर फोर्स is the surface force, that is the force acting due to pressure, and the body force in general can be in all the three directions, x, y and z, and we will find out कि special case में इसकी value क्या होगी. तो for the time being I am assuming that body force has a component in x, y as well as in z direction, although एक्चुअल प्रैक्टिस में आपको अर्थ के ऊपर सिर्फ बॉडी फोर्स नेगेटिव वाई डायरेक्शन में दिखती है, दैट इज जी. लेकिन हम इसको एनालिसिस को जनरलाइज वे में प्रूव करने के लिए आई एम अज्यूमिंग दैट बॉडी फोर्स इज हैविंग all the three components, bx, by and bz. So this is the same control volume, and I am representing the faces with these numbers and the corresponding forces. So I have used a different color for body forces. तो body forces के लिए मैंने ये blue color use किया है और surface forces के लिए ये black color use किया है. और अगर आप ध्यान से देखेंगे ये फेस
2, फेस 4 और फेस 6 में क्या कॉमन है? फेस 2 और I write down here face or force is 2 faces E, F, H, G, and here face is 4. 4 means A, E, G, D, and here is face corresponding to 6 D, C, H, G. इन तीनों फेसेस में क्या कॉमन है? They are the planes. They represent the planes. Y, X, Z, X, and Y, Z. नहीं, how they are different from, for instance, how E, F, G, H is different from A, B, C, D. So if we took that tetrahedron, they would be the. They are passing through the origins. So you are correct. All these three planes, E, F, G, H, A, E, G, D, and D, C, H, G, they are passing through the point G. That is the origin of the coordinate system. Because E, F, G, H and A, B, C, D are parallel planes. ये parallel planes हैं. तो इनमें फर्क सिर्फ यही है कि एक प्लेन ओरिजिन से पास कर रहा है और एक प्लेन ओरिजिन से कुछ दूरी पे. लाइकवाइज AEGD, ये AEGD ये रहा प्लेन, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग पैरेलल प्लेन हो जाएगा BFHC. तो ये भी YZ प्लेन के पैरेलल है, लेकिन एक्चुअल में ये ओरिजिन से पास नहीं कर रहा. तो हमने सिर्फ इसलिए डिफरेंशिएट किया इनको ताकि इन प्लेन्स पे हम P डिफाइन कर पाए, और बाकी जो उससे दूर हैं प्लेन्स लेकिन उसके पैरेलल हैं, उस पे हम इस तरह से उस चेंज को रिप्रेजेंट कर पाए. हाँ जी, क्लियर है? Yes, sir. So any doubts? For instance, अगर मैं 2 लूं, 2 is pointing in positive z direction, तो P dx plus dy, P into dx dy is the force, और उसके पैरेलल फेस पे ABCD पे, that is this one, wait for a second, that is this one represents the force on ABCD, and that is equal to P plus curly P by dz into dx dy. तो इसी तरह से सभी फोर्सेस मैं ले लूंगा, and if I write down now summation of all forces in x, y and z direction, I equated this equal to 0, I get these three equations. So this is the first assumption while deriving this equation. What is the assumption here? What is the assumption here? Particles are in static equilibrium. Equilibrium, it means there is no External force. acceleration. Excellent. Now let me know whether this will be valid for fluid element moving with constant velocity or not. ये जो एनालिसिस कर रहा हूं मैं कि फ्लूइड एलिमेंट कांस्टेंट वेलोसिटी पे वैलिड होगा? Yes, sir. Yes, sir. If we remain in the frame of the fluid. तो इसमें मैं ऐसे बोल रहा हूं, रिजिड बॉडी मोशन. रिजिड बॉडी मोशन का क्या मतलब है? फ्लूइड एक रिजिड बॉडी की तरह मूव कर रहा है, इसमें रिलेटिव मोशन नहीं है, लेकिन एज सच फ्लूइड रिजिड बॉडी की तरह मूव कर रहा है. क्या एग्जांपल आप बता सकते हैं? जैसे पानी का गिलास है, से यू आर मूविंग दिस ग्लास with a constant velocity v, will the same static equilibrium equation apply here? हाँ जी. Yes, sir. So you are correct. So please remember, whether it is static or it is moving with constant velocity as a rigid body,
this equation will lead to these three component equations. That is summation of all forces in x, y and z direction. ये तीनों equal to 0 आएंगी अगर नॉन एक्सेलरेटिंग हमारे पास सिस्टम है. अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है तब भी ये इक्वेशन वैलिड है. तो हमारी फर्स्ट अजम्पशन क्या है इसको डिराइव करते वक्त कि एक्सेलरेशन इज 0. तो दिस इज द फर्स्ट अजम्पशन. तो प्लीज रिमेंबर जब एक्सेलरेशन नॉन जीरो है तो आप ये जो इसका आंसर आएगा वो लगा नहीं सकते उस सिचुएशन में. सो दिस शुड बी क्लियर इन योर माइंड. अब मैंने समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन की है. आई एम गिविंग यू 30 सेकेंड्स. इस इक्वेशन को देख लीजिए ध्यान से. अगर कोई डाउट है प्लीज आस्क मी. सो दिस वाज m ax was 0. so this led to this equation. और इस इक्वेशन में ये चीज कैंसिल हो जाएगी p के साथ. ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी एंड यू आर लेफ्ट विद ओनली दिस टर्म. That is curly p by curly x is equal to rho bx, where bx is the body force per unit mass in x direction. इसी तरह से जब आप सम ऑफ ऑल फोर्सेस इन y डायरेक्शन 0 करोगे तो ये इक्वेशन आएगी. एंड लाइकवाइज if you have sum of all forces in z direction equated to 0, you will end up in this equation. हाँ जी, क्लियर है? तीन इक्वेशन क्लियर है सबको? अब मैं इस पे assumption लगा रहा हूं कि सिर्फ बॉडी फोर्स x डायरेक्शन में है. तो उससे क्या होगा? सॉरी, बॉडी फोर्स सिर्फ y डायरेक्शन में है. What does that mean? x और z में bx 0 रहेगा. Is not equal to 0. bx is equal to bz is equal to 0. तो क्या हो जाएगा आपके पास? This term will go to 0 and this term will go to 0. So you get this 0, this 0. अगर दोनों 0 हैं इसका मतलब p is only function of y. तो मैंने p को करली से अब मैं टोटल डिफरेंशियल पे आ गया. सो प्लीज रिमेंबर dp by dy is equal to rho by and by is what? ये माइनस g है. तो मेरे पास dp by dy आ रहा है माइनस रो g. Now this is the governing differential equation for a non-accelerating fluid in a condition where there is only one body force. तो ये कौन सी इक्वेशन है? फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ स्टैटिक्स. जब सिर्फ एक बॉडी फोर्स है एंड दैट इज इन वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन और ये नॉन एक्सेलरेटिंग फ्लूइड है तब ये इक्वेशन वैलिड है. इस पे अगर एक और assumption लगा दूं कि रो जी इज अ कांस्टेंट और इट इज इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड एंड एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, तब रो जी कांस्टेंट हो जाएगा. देन व्हाट डू आई गेट? पी एस P2 minus P1 minus rho g y2 minus y1. तो ये इक्वेशन इक्वलेंट है बेसिकली P was equal to rho g h. तो जब आप ये इक्वेशन लगाते हैं P is equal to rho g h तो इसके पीछे assumptions बहुत सारी हैं. कौन कौन से assumptions हैं? नॉन एक्सेलरेटिंग, second, only one body force, रो जी का प्रोडक्ट कांस्टेंट है. अगर ये तीन कंडीशन है तभी आप P इज इक्वल टू रो जी एच कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते. तो प्लीज रिमेंबर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट.
You cannot apply the same formula in different conditions. जिस कंडीशन के लिए डिराइव किया है उसी कंडीशन के लिए ये फॉर्मूला वैलिड है. तो आप क्या बता सकते हैं किस केस में ये चीज वैलिड होगी? इन लिक्विड्स और गैसेस? सर लिक्विड. गैसेस में वैलिड होगी कि नहीं होगी, कि हो सकती है कुछ केसेस में? लिक्विड तो कंप्रेसिबल होगा सर. हाँ जी, गैसेस तो कंप्रेसिबल होगा सर. मुझे बात बताइए, लिक्विड्स इनकम्प्रेसिबल हैं कि नहीं है? सारे नहीं सर. हाँ जी, नहीं सर, लिक्विड्स इनकम्प्रेसिबल है अभी तक. न्यूटोनियन. नहीं. अब यहां पे मैं एक और चीज कह रहा हूं, वाटर कंप्रेस हो सकता है? नहीं, ऐसे तो नहीं. हाँ जी, प्लीज रिमेंबर, इन साइंस देयर आर नो एब्सोल्यूट टर्म्स. वाटर कैन ऑल्सो बी कंप्रेस, लेकिन उसके लिए बहुत ज्यादा प्रेशर चाहिए. यस सर, भाई. तो इंजीनियरिंग एप्लीकेशन में वो प्रेशर नहीं आता, तो हम वाटर को क्या अप्रोक्सीमेट करते हैं? तो प्लीज रिमेंबर, वी आर ऑलवेज अप्रोक्सीमेटिंग थिंग्स. वी आर अप्रोक्सीमेटिंग लिक्विड्स एज इनकम्प्रेसिबल, और गैसेस भी कुछ प्रेशर तक इनकम्प्रेसिबल हम अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं विदाउट एप्रिशिएबल एरर. हाँ जी, क्लियर है? तो इट डिपेंड्स कि कितनी कंप्रेसिबिलिटी इफेक्ट है उस पॉइंट पे. किसी को कोई डाउट? अब सेकंड बात बताइए मुझे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कांस्टेंट होती है कि इट कैन वेरी? वेरी कर सकती है. किस डिस्टेंस पे वेरी करेगी? हाइट. हाँ जी, आप मान लीजिए एम हॉस्टल के टॉप पे खड़े हैं, एक बच्चा ग्राउंड पे खड़ा है, तो जी दोनों के लिए सेम है, डिफरेंट है? डिफरेंट. तकरीबन सेम है. और अब मैं बोलूं एक ग्राउंड पे है और एक से माउंट एवरेस्ट पे है. से वन इज एट सी लेवल एंड अदर वन इज एट माउंट एवरेस्ट. जी में कुछ वैल्यू चेंज आएगी? यस सर. ठीक है, तो प्लीज रिमेंबर, कौन सी सिचुएशन में आप उस हिसाब से आप जी को कांस्टेंट ले सकते हैं कि नहीं ले सकते. So most of the engineering applications, G is a constant, and most of the applications liquids are incompressible, and some cases gases are also incompressible. तो जब ये situation satisfy हो जाए तीनों, then we can safely apply P is equal to rho GH. अगर इन तीनों में से कोई भी condition satisfy नहीं हो रही, we cannot apply this formula. तो ये प्लीज ध्यान में रखना, डोंट अप्लाई दिस फॉर्मूला टू एनी आर्बिट्रेरी सिचुएशन. हाँ जी, क्लियर है? एनी डाउट्स टू एनीवन? नाउ वी हैव a very good application of this formula, that is P is equal to rho GH. जो हमने फॉर्मूला निकाला है उससे हम बहुत एक प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को एड्रेस कर सकते हैं, दैट इज प्रेशर मेजरमेंट. सो यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन मेजर प्रेशर. और प्रेशर मेजरमेंट हम बहुत तरीके से कर सकते हैं. उनमें से एक तरीका कौन सा है? थ्रू मैनोमीटर्स. Now, before I go to manometers, let me know what is barometer. What is barometer? एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने. इट्स एयर प्रेशर मेजर करने.
एयर प्रेशर मेजर करने के लिए। कोई भी एयर प्रेशर की कुछ स्पेसिफिक एटमॉस्फेरिक एयर प्रेशर आप कहते हैं? एटमॉस्फेरिक। एटमॉस्फेरिक। तो इसमें क्या होता है, यू हैव अ कंटेनर, उसमें एक ट्यूब, इन्वर्टेड ट्यूब है, यहां पे मान लीजिए मर्करी है। So up till what level will mercury rise? Air pressure is being felt here. तो क्या होगा यहां पे, किस लेवल तक आएगा मर्करी? What will be this level? सर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे 760 mm सर। 760 millimeters. Now if I have a tube which is larger than this, what will be the level? It will be same, it will be different. हाँ जी। और यहां पे मान लीजिए मैं लेंथ भी चेंज कर देता हूं, से I have, instead of this, I'm drawing the third one. In this case, what will be the level? All the three will have the same level, और इनमें डिफरेंट होगा, इसमें लेंथ भी डिफरेंट है, एरिया भी डिफरेंट है। इन दोनों की लेंथ सेम है ट्यूब्स की। तो मैं पूछ रहा हूं जो मर्करी राइज होगी वो सेम राइज होगी कि इट विल डिपेंड ऑन लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द ट्यूब्स? सर सेम होगी। सेम। हेलो सर। हाँ जी। सर अगर डायमीटर का इंक्रीज कर दिए तो फिर जो वेपर प्रेशर होगा सर, जो मरकरी के ऊपर जो वैक्यूम जो वहां पे रहता है उसका वेपर प्रेशर, वहां पे वेपर्स फॉर्म होंगे सर मरकरी के। लेकिन जो वेपर प्रेशर होता है मर्करी का वो बहुत लो होता है, इसलिए हम मर्करी यूज करते हैं। तो अगर उसमें कोई चेंज भी आ रहा है वो ज्यादा चेंज नहीं करेगा एब्सोल्यूट वैल्यू को। तो अगर आप मान लीजिए कोई और चीज यूज करते, मान लीजिए अल्कोहल यूज करते या वाटर यूज करते, तो वेपर प्रेशर का इंपैक्ट आ जाता, तब शायद इनमें डिफरेंट हाइट्स आती, थोड़ी सी चेंज आता, ज्यादा चेंज ना आता। लेकिन मर्करी के केस में वेपर प्रेशर पहले ही बहुत कम होता है, एंड दैट्स व्हाई यू डोंट हैव significant difference when you change the length or the area of cross section. हाँ जी, क्लियर है? हाँ जी, किसी को कोई डाउट? तो प्लीज रिमेंबर इन बैरोमीटर्स, चाहे आप ट्यूब का डायमीटर पतला है या मोटा है या लेंथ कम है ज्यादा है, इट विल ऑलवेज राइज टू 760 millimeters. Now my next question is, instead of mercury, if there was water, what height will be there in these tubes? सर डेंसिटी 13.6 से मल्टीप्लाई करना सर के बाद। So you can find out, and it is nearly comes out to be around 10 meters. तो तभी बैरोमीटर में आपका पानी नहीं होता, क्योंकि उसको लिए आपको 10 मीटर हाई ट्यूब चाहिए होगी, एंड दैट इज नॉट प्रैक्टिकल। तो तभी आप मर्करी यूज करते हैं इन मोस्ट ऑफ द केसेस इन अ बैरोमीटर। हाँ, क्लियर है? किसी को कोई भी डाउट? नाउ आई एम कमिंग टू मैनोमीटर्स। तो मैनोमीटर बैरोमीटर से सिर्फ ये डिफरेंस है कि दे मेजर द प्रेशर डिफरेंस
you don't get the absolute value. You get the pressure difference between two systems or more systems. And the simplest of manometers is called pressure tube, या इसको piezometer भी बोलते हैं आप. तो प्रेशर ट्यूब पीजोमीटर का मतलब क्या है? मान लीजिए ये ट्यूब में पानी फ्लो कर रहा था या पानी स्टैटिक है, जैसे भी है, आपने इसके ऊपर एक ट्यूब लगा दी, and this fluid will fill this tube. One more question, क्या इस ट्यूब का कुछ मिनिमम डायमीटर होना चाहिए कि कितनी भी पतली हो सकती है? ऐसे बैरोमीटर में क्या मिनिमम कुछ डायमीटर होना चाहिए कि आप 1 mm की भी ट्यूब ले सकते हो बैरोमीटर में या मैनोमीटर में, और देयर इज मिनिमम डायमीटर प्री डिफाइंड? Sir, minimum diameter according to the surface tension of the fluid which we are testing. सो आपके कैपिलरी एक्शन ना हो या मिनिमम हो, उसके हिसाब से आपका डायमीटर होना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज अगर कैपिलरी एक्शन हो गया तो बहुत ही ज्यादा राइज कर जाएगा फ्लूइड या कम ही रह जाएगा. सो वी डोंट वांट दैट. हमें चाहिए कि वो सिर्फ प्रेशर मेजर करे, उसमें सरफेस टेंशन इफेक्ट्स ना आए या कैपिलरी एक्शन इफेक्ट्स ना आए. सो देयर इज अ प्री डिफाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ this tube which depends on the properties of the fluid itself. तो ये डायमीटर कुछ मिनिमम है. अब मुझे बात बताइए, this is a piezometer, whether this measures gauge pressure or absolute pressure? Sir, absolute. Sir, gauge pressure. Gauge pressure. Why? हाँ जी, आंसर इज करेक्ट. आई वांट द एक्सप्लेनेशन व्हाई गेज प्रेशर. So this is the correct answer. Pressure is the difference of the pressures from the free surface to the point we are calculating. So this rise has occurred over and above the atmospheric pressure. हाँ जी. Yes, sir. हाँ जी, क्लियर है? Yes. So at pressure, gauge pressure at A is rho g h1. This is P gauge at A. Likewise, P gauge at B is rho g h2. अब इस ट्यूब को अगर मैं बंद कर देता, तब कौन सा प्रेशर होता? Absolute. तब एब्सोल्यूट होता. हाँ जी, क्लियर है? So if this end is open, it is gauge pressure. If this is closed, this is absolute pressure. सर एब्सोल्यूट तब होता ना सब जब अगर बंद रहता हो, जो स्पेस है उसमें वैक्यूम रहता. हाँ, ये आपने. हाँ जी, बताइए. तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि एब्सोल्यूट प्रेशर सिर्फ लिक्विड का प्रेशर है. हाँ, सिर्फ लिक्विड का प्रेशर. ओके सर. तो यहाँ पे उसको कुछ पुश नहीं करना पड़ रहा, क्योंकि यहाँ वैक्यूम है, ये क्लोज है यहां से. Now my second question is, can piezometer be used to measure pressure of liquids or gases or both? सोच के बताइए मुझे. आई एम गिविंग यू 30 सेकेंड्स. पीजोमीटर का मतलब है आपने सिर्फ जो भी एक कंटेनर है उसके ऊपर एक ट्यूब लगा दी और वो ऊपर से ओपन है. क्या आप
इसको लिक्विड या गैसेस दोनों के लिए यूज कर सकते हो, या सिर्फ लिक्विड के लिए कर सकते हो, या सिर्फ गैसेस के लिए यूज कर सकते हो? Sir, only liquids. Only liquids. Why do you think so? क्योंकि सर गैस तो ऊपर से ऐसे ऊपर सर जाएगी। गैस तो सर डिफ्यूज कर जाएगी सर, तो उसका हाइट राइज से सर क्या हुआ मतलब? गैस तो एक तो पहली बात यहाँ से डिफ्यूज होके इट विल गो आउट फ्रॉम द सिस्टम. Yes sir. व्हाट इज द अदर रीजन? मान लीजिए इसको क्लोज कर देते हैं हम, उस केस में क्या होगा? सर तब भी हम उसका एग्जैक्ट प्रेशर मेजर नहीं कर पाएंगे। सर कारण? गैस अपने आप को एक्सपैंड कर पाएगी, हाँ, तो उस वजह से प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा नीचे वाले कंटेनर में भी, लेकिन जिसमें आप तो वो हाइट मेजर कर रहे हो ना इसमें. सर अगर उसमें से प्रेशर सर ड्रॉप होगा ना सर, तो उसमें हाइट राइज ज्यादा नहीं मिलेगा हम लोग को. नहीं, मान लो ये है, एक केस है जिसमें इतनी हाइट है क्लोज्ड है, और दूसरा केस है जिसमें इतनी हाइट है क्लोज्ड है. तो इसमें क्या गड़बड़ क्या हो रही है इसके अंदर? क्योंकि गैस विल ऑक्यूपाई द एंटायर वॉल्यूम वॉट एवर यू प्रोवाइड इट. हाँ जी, क्लियर है? यस सर. तो एक्चुअल में जितनी आप हाइट रखेंगे ट्यूब की, वो उतनी हाइट ही फिल कर देगा. यस. So this is not a method to measure pressure of gases. You cannot apply a piezometric tube on a container containing pressurized air. हाँ जी, क्लियर है? हेलो सर. हाँ जी, बताइए. सर पीजोमीटर से हम लोग वो क्या बोलते हैं, वो वाले प्रेशर मेजर कर सकते हैं जो PATM से नीचे हो. P एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जो नीचे हो वो मेजर कर सकते हैं हम लोग. वो भी नहीं कर पाओगे आप. गेज कर पाओगे, वैक्यूम प्रेशर नहीं कर पाओगे. जो एटमॉस्फेरिक से नीचे है वो नहीं कर पाओगे. उसमें प्रॉब्लम क्या आएगी? They will be rise or not? There will be no rise, because there is no positive additional pressure that you call gauge pressure. तो इसमें नेगेटिव प्रेशर हो रहा है. सो पीजोमेट्रिक में आप गेज प्रेशर ही मेजर कर पाते हैं, वैक्यूम प्रेशर नहीं मेजर कर पाते, और सिर्फ लिक्विड्स को आप मेजर कर पाते हैं, गैसेस को मेजर नहीं कर पाते. हाँ जी, क्लियर है? किसी को कोई डाउट? Now what about the second one, U-tube manometer? इसमें आप क्या क्या मेजर कर सकते हैं, and what is the difference? तो ये प्रेशराइज्ड एयर है मान लीजिए, या तो कोई भी liquid लिक्विड बना है. तो ये है लिक्विड, कोई और डिफरेंट. ये फ्लूइड है, जो लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है. तो मुझे बात बताइए, ये पी फ्लूइड है और ये क्यू लिक्विड है. तो पी और क्यू में क्या कुछ रिलेशनशिप होना चाहिए कि नहीं? मतलब आप कुछ भी आर्बिट्रेरी ले सकते हो कि दे आर सर्टेन कंस्ट्रेंट्स. मान लो यहां पे मैंने ले लिया ऑक्सीजन है और यहां पे ले लिया वाटर. कैन यू टेक दिस और नॉट? सर डेंसिटी में डिफरेंस है सर, हाइट राइज ज्यादा नहीं मिलेगा फिर. और कोई मान लीजिए एग्जांपल मैं बोलता हूं, आपको उससे ज्यादा इजी समझ आएगा. मान लीजिए यहां पे है अल्कोहल और यहां पे है वाटर. क्या आप कर पाएंगे ऐसे? सर इमिसिबल होने चाहिए सर. हाँ, immiscible. So one condition is it should be immiscible. Otherwise क्या प्रॉब्लम होगी? It will not apply pressure, it will mix with the other fluid. So please remember, जो fluid P है जो इसके अंदर है और जो इसमें liquid है, these should be immiscible
fluids. If they are not immiscible, then you cannot use this U-tube manometer. Clear? सर तो बेसिकली सर इमिसिबल लिक्विड्स हम सर यूज कर सकते हैं कैसा यहाँ पे? हाँ, इसमें लिक्विड्स हो चाहे, मतलब जो ये पी फ्लूइड है, ये चाहे लिक्विड हो चाहे गैस हो, तो यहाँ पे चाहे आप लिक्विड रख लीजिए चाहे गैस हो, दोनों चीजें आप मेजर कर सकते हो। और ये लिक्विड ही है, सिर्फ होना क्या चाहिए, जो ये लिक्विड या गैस है ये इस लिक्विड में इमिसिबल होना चाहिए, अदरवाइज यू कैन नॉट यूज दिस मैनोमीटर। Sir, shouldn't be there one more condition that the liquid which we are measuring, हाँ, उनका जो है evaporation point काफी मतलब थोड़ा high होना चाहिए, because let's say कि अगर मुझे मैनोमीटर के अंदर एथेनॉल को मेजर करना है हाँ, या कुछ ऐसा लिक्विड, तो सर वो तो ये जो ओपन एंड है यहाँ से एवापोरेट होता चला जाएगा, तो वो हमारी रीडिंग्स वेरिएट नहीं करेगा। अच्छा, आप ये वाला कह रहे हैं जो ये लिक्विड है? यस सर, जैसे मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल डेली यूज कोई फ्लूइड टेस्ट करने, जैसे थिनर मैंने यहाँ पे या एथेनॉल मैंने डाल दिया, तो व्हाट आई एम सेइंग इज आपने इसका प्रेशर मेजर करना है ना, सो योर इथेनॉल विल और ईथर विल बी हियर। ओके सर, यस सर, यस सर, दिस इज एसेंशियली मर्करी ओनली, ये वाला ना? राइट सर, हाँ जी सर, क्योंकि इसकी वेपर प्रेशर बहुत लो है, सो इनवेरिएबली यू कीप मर्करी एज अ लिक्विड। यस सर, आई फॉरगॉट दैट, गॉट इट सर, थैंक यू। ठीक है सर, एक ये कंडीशन नहीं रहेगी जिसका हम लोग, जिस फ्लूइड का हम लोग को प्रेशर मेजर करना है, हाँ, और जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड हम लोग ले रहे हैं, हाँ, उनका जो डेंसिटी डिफरेंस है ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर सर मैनोमेट्रिक अगर ज्यादा हो गया तो सर हाइट राइज हम लोग को उतना इफेक्टिव नहीं मिलेगा ना। नहीं Difference हमें अगर हाइट राइज, हाँ, जो आप बात कह रहे हो कि मान लीजिए यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस आपने, मान लीजिए एक बार किसी ने ए लगाया, दूसरी बार किसी ने एक और कंटेनर लगाया बी, और दोनों में प्रेशर डिफरेंस बहुत कम है, तो आप ये कह रहे हो कि भाई इसका हाइट जो चेंज था ए केस में और बी केस में बहुत डिफरेंस कम आएगा। जैसे रो जी, मान लीजिए एक बार हाइट थी मान लीजिए 10 mm और दूसरी बार थी 11 mm, तो आप ये कह रहे हो दोनों को रीड करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कि दोनों में चेंज बहुत कम है, आप यही कह रहे हैं? यस सर, आप यही कह रहे हैं, मान लीजिए डेंसिटी क्लास हाँ जी क्लास 11:20। Okay, so I will break for today. We will continue with this in the next lecture. Sir, excuse me, sir. Okay then. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay.